السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں۔ جیسا اس چینل پہ کافی دنوں سے ریکارڈنگ نہیں ڈل رہی تھی اور کوئی ویڈیو نہیں آ رہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے عبدالکریم بھائی جن کی طبیعت کافی دنوں سے خراب چل رہی ہے، اور کچھ وقت پہلے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے ذمہ داری دی کہ بھائی اب آپ اس چینل پہ ریکارڈنگ ڈالیں، تو انشاءاللہ اب اس چینل پہ ریگولر ریکارڈنگ آتی رہے گی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے عبدالکریم قادری اظہری بھائی کے لیے دعا کریں کہ ان کی طبیعت اللہ تعالیٰ جلد سے جلد درست کرے اور ان کو صحت عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقہ طفیل۔ اب دیکھیں، یہ ریکارڈنگ میں جو ڈال رہا ہوں یہ دیوبندی کا ایک مفتی ہے، عالم ہے، اور یہ بڑے بڑے آج کے جو مولوی ہیں ان کا یہ استاد ہے، جیسے علی اصغر اور مفتی عمیر قاسمی اور بہت سارے دیگر علماء کا یہ استاد ہے دیوبند کے۔ تو اس کے ایک چیلا ہے جس کا نام تھا رضوان، کافی دن سے اس سے میری بات چیت چل رہی تھی۔ اس نے ایک ریکارڈنگ مجھے تقریر بھیجی، ایک کلکتہ کا کوئی عالم تھا جو اعلیٰ حضرت کے تعلق سے یہ بات کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت حقہ پیتے تھے اور پان کھاتے تھے اور دیگر بہت ساری بکواس اس تقریر میں تھی۔ اس کے تعلق سے اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا بھائی یہ میری بہت پرانی تقریر ہے، میں اس طریقے کی باتیں نہیں کرتا ہوں۔ تو اس سے میں نے نمبر مانگا تو اس نے اس رضوان کا نمبر دیا۔ اس نے مجھے وہ ریکارڈنگ دوبارہ پرسنلی بھیجی تو اس سے میری بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ بھائی میں اپنے عالم کو لے لیتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا جاہل ہے کہ اس کو پتہ ہے یہ بات نہیں کر پائے گا، تو مجھے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ گھما رہا تھا، حالانکہ اپنے جال میں خود ہی پھنس گیا۔ یہ بدعتی مجھے ثابت کر رہا تھا، خود ہی بدعتی ثابت ہو گیا۔ آخری میں اسی کے رضوان نے جو اس کو لے کر کے آیا تھا اسی نے اس کی شکست کا اعلان کر دیا۔ اب آپ سنیں اس ریکارڈنگ کو کہ اتنا بڑا جاہل مفتی ہے دیوبند کا کہ اس مفتیوں کا یہ حال ہے تو ان کے عام انسانوں کا کیا حال ہوگا، عام مولویوں کا کیا حال ہوگا۔ سنیں آپ اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، ہاں ہلو، ارے رضوان بھائی آپ کے موبائل میں گانا کیسے لگا ہوا ہے بھائی؟ جی گانا لگا ہے، جی صحیح بتائیں حضرت، جی جی اب پتہ نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ اچھا، وہ صبح آپ کی بات ہو رہی تھی ہمارے ایک سنی بھائی سے، جی جی، اس میں آپ نے ان کو ایک مولانا صاحب کی تقریر بھیجی تھی۔ اچھا ہاں، وہ کیا کہتے ہیں گروپ میں، ہاں، تو وہ جی تقریر جو ہے وہ تقریر جن کی تھی ان سے ہماری گفتگو ہوئی، اچھا، تو وہ ریکارڈنگ میں آپ کو پرسنل میں بھیج دوں گا۔ جی جی، پہلے انہوں نے یہ انکار کر دیا، کہا کہ یہ بہت دن پہلے میں نے تقریر کیا تھا۔ نہیں بس انہوں نے جو کہا ہے بھائی، میں نے آج سنیے پورا، بات تو سنیے، انہوں نے بہت دن پہلے اس کو تقریر کیا تھا، تو ہم نے کہا بھائی تقریر کیا تھا تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں صحیح، تو اس کا جواب وہ نہیں دیے، فون رکھ دیا۔ پھر ان کو ہم نے دوبارہ فون کیا، جی، ہم نے کہا کہ حضرت سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہہ رہے نہیں، ہماری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہمارے گلے میں تکلیف ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اس طریقے سے جھوٹ بولیں گے تو ایسے ہی ہوگا، توبہ کر لیجیے آپ۔ ہاں تو انہوں نے صحیح پھر بات، اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخیاں کری، وہ ریکارڈنگ میں پورا موجود ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی، تو آپ نے ہمارے بھائی سے یہ کہا کہ بھائی آج کل ہندوستان کا ماحول جو ہے وہ صحیح نہیں، صحیح بات، یہی ٹھیک ہے بات نا؟ ہے، جی جی، تو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے جھوٹے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتا ہے، ایک دوسرے کو پہنچاتا ہے۔ جی جی، تو یار آپ کو جب اس کی تحقیق نہیں تھی اور آپ کو ہندوستان کے ماحول کا اتنا ڈر تھا تو یہ آپ تقریر کیوں ٹرانسفر کر رہے ہیں ادھر سے ادھر؟ نہیں مجھے کیا پتا تھا بھائی اس طرح تو اب آپ نے معاملہ ہو جائے گا، مجھے دوسری اب بات گروپ میں بھیجنے سے کیا ہو گیا، مطلب ہر چیز آتی ہیں، دوسری اس میں بات دیکھو آپ نے ہمارے خلاف بھی باتیں آتی ہیں، دیکھو بھائی آتی ہیں، بالکل آتی ہیں، وہ ہمارے تو آئیں خلاف بھی گی، باتیں آتی ہیں، اب میں نے ہی بھیج دیا۔ نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ اب آپ نے کہا کہ ہمارے محلے میں سب سیاہ کیا کہتے ہیں، سنی اور دیوبندی بریلوی سب مل کے جی رہتے ہیں، جی جی، ہے نا؟ تو اس طریقے کی ریکارڈنگ اگر آپ بریلوی کو بھیجیں گے تو پھر میل ملاپ رہے گا آپ کا؟ اب مجھے کیا پتا کہ آپ اس میں نہیں ہیں تو یا پھر کوئی یہ ہے، لیکن پھر تو آپ اچھا یہ نے جھوٹ بتاؤ، بولا۔ جیسے آپ بتا رہے ہیں ہاں کہ میں وہاں بھیجوں گا تو
ठीक नहीं रहेगा तो इसी तरह हमारे खिलाफ भी तो वीडियोज आती तो थी। फिर मेल मिलाप कहाँ रहा, फिर झूठ क्यों बोलते हैं कि मेल मिलाप है? नहीं, मैंने कहाँ झूठ बोला आपसे? अच्छा एक बात बताएं मुझको, जी आपने कहा कि हिंदुस्तान का माहौल ऐसा है, बहुत खराब है, तो जी अगर हिंदुस्तान में आपको किसी ने मार दिया तो जब फरिश्ते आएंगे तो जी। फरिश्ते ईमान देख करके सवाल जवाब करेंगे या फिर माहौल देख करके बात करेंगे आपसे? नहीं, ईमान देख कर बात करेंगे, तो माहौल यहाँ ईमान पर देख कर तो अब फरिश्तों से कब्र के ज्यादा अंदर डर होना चले चाहिए ना जाओगे आपको। तो कब्र में चले जाओगे तो माहौल दुनिया का क्या तो भाई देखोगे? हक बात करने से नहीं डरना चाहिए ना, फरिश्तों का तो ज्यादा वही खौफ हक रखना मैं चाहिए, हर अल्लाह का चीज। खौफ ज्यादा रखना चाहिए ना। अच्छा, जैसे अगर हम अपने मुसलमान भाई को किसी परेशानी से बचाना चाहें और उसका कोई दूसरा रास्ता हो तो उसे हमें इख्तियार करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? जैसे अगर हम आपस मुसलमान में। मुसलमान कोई अपने आप को अगर मुसलमान कहे तो आपको जी पता है कि मुसलमान और ईमान वाले में फर्क होता है, मालूम है आपको? जी, कितना फर्क होता बहुत फर्क होता है, मुसलमान और ईमान वाले का तो कोई है ना? जोड़ ही नहीं। तो मुसलमान मुंह से बोल देने से कोई मुसलमान नहीं जी हो जी जाता। बिल्कुल, मुंह से बोल देने से कोई नहीं कादियानी भी होगा। कहता है मैं अपने आप को मैं जी जी, मुसलमान हूँ, शिया भी हाँ सही कहता बात। जी है ना? जी तो अब जैसे ये जो मुसलमान कहने से और करनी में और कहने में बहुत फर्क होता है। जी, सही सही बात है अब आपकी। जैसे हम जो आपको कहते हैं कि भाई हर मजहब का जो माखज होता है जी उसके अकाबिर की बात मोतबर होती है, ना कि गैर अकाबिर की, ना कि जाहिल की। जी, मानते हैं ना बात को? हाँ जी, बताएं आप। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि आपके इतने बड़े बड़े आलिम गुजरे, अशरफ अली जी थानवी साहब गुजरे, हाँ रशीद अहमद गंगोई साहब गुजरे जी हैं, और आपके मुजद्दिद कश्मीरी गुजरे, ठीक जी है, आपके क्या नाम है अबू बकर गाजीपुरी गुजरे, कासिम जी नानोती गुजरे, जी। क्या किसी भी आलिम ने आला हज़रत को काफिर बोला है? अरे तो मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई आलिम तो हूँ नहीं, मैं इतना किताबों को मुताला करता तो हूँ, मैं आज क्या इतने बताऊँ। सारे देवबंदी अपने अकाबिर के खिलाफ काम क्यों करते हैं? वो आला हज़रत को काफिर क्यों कहते हैं? अब पता नहीं, उन्होंने पढ़ा होगा भाई तो कहते होंगे, अब मुझे क्या पता। तो मतलब ये कि आपके आलिमों ने तहकीक नहीं की? तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि देखो अगर। मैं समझाता हूँ, आप पढ़े लिखे इंसान हो, आप देखो गूगल एक पे जब अच्छा, एक बात जाओगे, बता, आपसे बताऊँ मैं। नहीं सुनिए तो, आप बात करना चाहें तो मैं किसी आलिम को लाइन पर ले बिल्कुल सकता बात हूँ। करा देना, लेकिन पहले मेरी बात इसी को आप वक्त करूँ, सुन लें। फोन करूँ? हाँ कर लीजिएगा, लेकिन मुझे पूरी वजाहत करने दीजिए। नहीं, मेरी बात का तो कोई एतबार नहीं, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा मैं लिखा हूँ आपको, नहीं। नहीं मैं आप मुझसे आपको, कुछ भी हाँ करा लेंगे अगर, अरे रास्ता तो तो दिखा उसका दूं कोई एतबार आपको, नहीं। नहीं, रास्ता रास्ता दिखाने दिखा वाले सकता मेरे हूँ, नहीं आलिम, दिखा मेरे सकता हूँ? उस्ताद मोहतरम हैं। हाँ तो अच्छा इल्म रास्ता है देख उनके लीजिए, पास, पहले तो वो पहले मुझे रास्ता रास्ता देख लीजिए। दिखा रहे हैं ना, कोई रास्ता, खुरापात मुझे बताते हैं ना कोई खुरापात में पढ़ता हूँ। हाँ रास्ता इसलिए देखिए, मैं। रास्ता देखिए। आला हजरत का विसाल हुआ 1824 में। कब हुआ? आप बताए 1824 जाएं। में। अब गूगल कर लेना, गूगल पे भी मौजूद है रिकैप। 1824 में गालिबन या 23 में आपका विसाल हुआ, और आपने 1400 से ज्यादा किताबें लिखी, अच्छा ठीक है। अशरफ अली थानवी साहब का क्या कहते हैं दुनिया से जो गए वो 1842 में। जी कितने दिन के बाद गए? 24 साल, तकरीबन 20 साल, हम्म 20 साल, ठीक है। जी तो 20 साल में आला हज़रत की किताबों की तहकीक हुई होगी या नहीं हुई होगी उनको? जी 20 साल में आला हज़रत की जितनी किताबें हैं उसकी हाँ। तहकीक हुई होगी या नहीं हुई होगी उनको? अब वो खुद जाने, मैं उनके बारे में क्या बता अब दूं, मैं मैं बता नहीं। रहा हूँ ना, उनकी किताब है, आखिरी किताब है मजालिसुल हिकमा, अशरफ अच्छा अली थानवी। है। उसमें लिखा है कि जब आला हजरत का विसाल हुआ तो एक शख्स आया, कहा क्या कहते हैं हजरत, क्या कहते हैं आला हजरत का विसाल हो गया। तो आपने उनके लिए दुआए मगफिरत की और कहा कि अगर मुझे उनके पीछे नमाज पढ़ने का शरफ हासिल होता तो मैं जरूर पढ़ता, किसके पीछे? आला हजरत आला के? हजरत के पीछे। जी तो आपने दुआए मगफिरत की, ठीक है ना। जी उसके बाद आपसे सवाल हुआ कि हजरत आप तो, आपके लिए तो हमेशा वो आपको काफिर का फतवा देते थे, आप हाँ दुआए मगफिरत क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने मेरे कुफ्र को समझा, अगर वो खुद फतवा ना देते तो काफिर हो जाते, खुद काफिर हो जाते, हाँ ठीक है। अब जी मुझे बताइए कि दूसरी तरफ फरमा रहे हैं कि किसी ने उसे पूछा कि हजरत ये बताइए क्या बरेलवियों के पीछे हमारी नमाज हो जाएगी? तो हाँ आपने कहा कि हाँ बरेलवियों के पीछे, आला हजरत के मानने वालों के पीछे तुम्हारी नमाज हो जाएगी, अलबत्ता हम उनको मुसलमान समझते हैं, वो हमें काफिर कहते हैं, हाँ ठीक है। तो ठीक। आला हजरत की 20 साल में किताब का मुतालबा किया, उसने मुताला किया, फिर भी हाँ, उनको मुसलमान कहा, तो आपके आलिम की बात मुतबर है, आपके आज के आलिम की मुतबर है?
किसकी तरह से मोतबर तो है? आपके आला हजरत भी कह रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं? एक जगह पे तो काफिर कह रहे हैं, दूसरी जगह पे कह रहे हैं कि मैं मुसलमान मानता हूँ उनके। कौन सी किताब में? किताब का नाम ना याद और नहीं, कौन सी बताओ तो किताब में रुको आला हजरत ने मुसलमान मनाया? आला हजरत रुको, का तो अभी मैं फतवा दिखा रहा वाजे हूँ, है। आप सुनो फोन मत काटना, मैं सुनो अभी सुनो दिखा सुनो, रहा हूँ, फोन में है। आला हजरत का फतवा वाजे है, मन शक्का फी कुफ्र ही वाजाब ही फकत जी कफर। जी, इन हाँ 4 यही है, अकाबिरों सही के बात। कुफ्र में भी कोई शक करे तो हाँ काफिर है। हाँ, जो कुफ्र में शक करे वो काफिर है, खुद आला हाँ हजरत साहब ने कहा है। हाँ। लेकिन तो एक अब वो जगह किताब अगर इस्माइल पहले की देहलवी, है, सुनो, एक जगह। हाँ, हाँ चलो बताओ। अगर वो किताब इस फतवे से पहले की है तो ये फतवा आने के बाद तो सारी बात क्लियर हो गई। ठीक है। चलो छोड़ो, वो तो वो अब अलग बात है, बताएं लेकिन क्या और इस्माइल दूसरी देहलवी के किताब है बारे में क्या कह रहे थे? आपकी दूसरी किताबें हैं। हम्म किताबों का नाम मुझे, देखो हम ज्यादा मुताला करता नहीं हूँ, हम्म। कुछ कभी कभी पढ़ लेता हूँ। तो मुझे बताएं, आज तो के आपके जो उस्ताद है जिनको लाइन पे ले रहे हो, वो ज्यादा बड़े हैं, अशरफ अली थानवी ज्यादा बड़ा था? ये मैं कैसे कह दूं यार, बड़ा मैं किसी को मतलब नहीं आपको कहता। इतना भी इल्म अब नहीं कि कौन बड़े हैं? अल्लाह ताला किसको कितना इल्म दे रखा तो है, मैं कैसे हकीमुल कह उम्मत सकता कैसे बना हूँ। दिया आपने अगर आपको इल्म नहीं है तो? हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी को हकीमुल उम्मत कैसे देखो बोलते भाई हैं? सुनो, ये फालतू की बात मतलब इस तरह से करोगे, क्योंकि हाँ। मुझे इल्म नहीं है तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता चलो सही आप से। अपने आलिम को ले लो। किसको ले चलो रहे मैं हो? फोन कर लूँ। किसको ले देखो रहे हो? बात करोगे, नाम कोई बता दो। टॉपिक अगर अपना हाँ लोगे हाँ, तो नाम बता दो, नाम बता दो। गाली गलौज नहीं होगी। नाम तो बता दो यार। हाँ, मुफ्ती आसिम साहब हैं। मुफ्ती आसिम साहब से कह देना, वो गाली गलौज करेंगे तो उनकी शिकस्त हो नहीं जाएगी। नहीं, वो गाली गलौज नहीं करेंगे, वैसा करते ही नहीं हाँ, वो। तो उनकी शिकस्त हो जाएगी फिर। और अगर आप करेंगे तो? हम करेंगे ही नहीं, अगर हम करेंगे हमारी नहीं नहीं, शिकस्त हो आप जाएगी। जैसे, हाँ ये भी ठीक है। हाँ, ले आइए आप लाइन तो पे दीजिए। किस किस चीज पे इसी टॉपिक आप पे बात होगी जो आपने किस टॉपिक किताब पर? पेश करी ना, कि आला हजरत रमजान के ताल्लुक से हुक्का पीते थे। नहीं, मैंने कहाँ पेश किया यार, मैंने कब आपने कहा? तकरीर देखो पेश करी ना, आपके मुफ्ती सुनो, साहब ने किया ना, तो मुफ्ती सुनिए, साहब का रद्द करेंगे ना वो। बात सुनिए, जिसने बात तकरीर की सुनिए, जिसने कहा, बात सुनिए। सुनिए, तो जिसने मुफ्ती साहब तकरीर का की रद्द जिसने करेंगे ना, कहा है। मुफ्ती साहब का फिर उनके ऊपर लाजिम हो जाता है देखो कि वो मैं मुफ्ती उनसे, साहब का रद्द करेंगे कि उन्होंने गलत बोला। मैं क्यों करूं यार? वो खुद बोलेंगे उनसे ना, जाओ, आपके तुम रद्द आलिम करो साहब। ना। आलिम बोलेंगे। ना उन्होंने मेरे ऊपर फतवा लगाया तो मैं उनका रद्द क्यों करूंगा? नहीं, एक जिसके बात ऊपर बता। फतवा लगा हो जाए खुद रद्द करे। अच्छा सुनो, मैं बताता हूँ। अगर कोई इफ्ता में, दारुल इफ्ता में कोई मुफ्ती गलत फतवा दे देता है, इसका मुझे इल्म ही नहीं पहले भाई, बात सुनिए गलत ना भाई, फतवा सही बात फतवा तो है। सुनो, बात तो आप सुनो। एक बताओ, अरे पढ़े लिखे बात तो आलिम से सुनो। आपको बात करना चाहिए था, बिल्कुल बात आपने मेरे करूंगा। पास कॉल कर दिया है। नहीं नहीं, पहले बात बताओ। आपको खुद इल्म वाले होंगे तो आपको समझना चाहिए अरे आप कि जो समझना नहीं चाह हमारे रहे बराबर हो। का उससे बात करना चाहे, चलो उससे लगाओ बात कॉल, करनी चाहिए है? लगाओ कॉल लगाओ। तो किस चीज पर बात करोगे पहले, ये तो बात तय हो मैं जाए। किसी भी किताब पे बात कर लूंगा, कॉल लगाओ। नहीं, किसी भी बात में नहीं, मतलब एक चीज कोई बता दो, मैं मैं उनसे बात तकवीयतुल ईमान पे बात करूंगा। तकवीयतुल ईमान। हाँ। अच्छा चलो, मैं बात करके बता रहा हूँ, अगर वो बात करने के लिए कह रहे हैं अब तो ये ठीक, क्या मैं बात जोड़ हुई? दूंगा। नहीं तो मैं जबरदस्ती, यही सुबह आपके भाई से मैंने यही बात कही थी। तो फिर आपके आलिम भाग क्यों रहे बात करने से? नहीं भागेंगे क्यों भाई, किसी को वक्त नहीं तो है अगर सुबह बात से करने अगर का तो। किसी को वक्त दिया आपने, तो सुबह से आपने पूछा उनसे? नहीं पूछा? अब मुझे टाइम नहीं मिला पूछने का तो। अच्छा, तो चलिए पूछिए हमारे सामने, हम भी देखो, लाइन पर हैं। हाँ हम फोन कर रहे हैं अभी हाँ, अभी लाइन में। पे काटना नहीं फोन, हम लाइन पर हैं। लेकिन देखो, बात अगर करेंगे आप तो हम पूरी बात कायदे से होनी चाहिए करेंगे, है? बिल्कुल कायदे से करेंगे और और एकदम अदब के बेहतरीन साथ, तरीके से करेंगे। और भागना भी नहीं। हम क्यों भागेंगे? हाँ भागते तो ठीक, तुमको कॉल करते हैं। देखिए फिर। हेलो। जी भाई। हाँ जोड़े कॉल आपका। हाँ, जोड़ी जोड़ी जोड़ी, बिल्कुल जोड़ी। और आपसे बात हुई ना कि अदब के दायरे में ही बात होगी। बिल्कुल अदब के दायरे में बात होगी भाई। जी, चलिए ले जोड़िए। आप जिस हेलो जी। हाँ बात करें। वस्सलाम वाला मन इत्तबअल हुदा। जी मुफ्ती साहब। वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा, इस तरह से सलाम का जवाब किसने दिया है? कुरान से साबित है। रसूलुल्लाह ने दिया कुरान है से साबित है हजरत। अगर कुरान से साबित है तो रसूलुल्लाह ने कुरान पर अमल किया कि नहीं किया, ये मैं पूछना चाहता हूँ। मुनाफिक सलाम करे तो उसका जवाब कैसे देना चाहिए? आप बताएं, आप बताएं। आप मुझे, मैंने तो दे दिया आपको। मैं बता रहा हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुम फी सबीलिल्लाह तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुम सलाम लस्त मुमिना। ठीक है। कुरान कह रहा है जब तुम्हें कोई सलाम कहे तो तुम ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो। चलिए ठीक है, अब मैं बोलूं? हाँ, आप समझ में आई बात? मैं बोलूं? दलील के। अरे मैं बोलूं हजरत?
देखिए एक उसूल बना लीजिए, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ, आप आलिम हैं, तो आलिम का थोड़ा सा। आलिम नहीं है? जी नहीं, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं तालिबे इल्म हूँ। चलिए माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो मैं तो थोड़ा सा अदब के दायरे में रखें बात को, थोड़ा आराम से आप बोल लें, फिर मैं बोल लूँ, आपकी मुकम्मल हो जाए मैं खामोश हूँ, मेरी मुकम्मल हो जाए आप खामोश रहें, है ना? बीच में ना आप बोले ना मैं बोलूँ, खलते मवस नहीं होना चाहिए। जो मैंने पढ़ी, आपने जो आयत पढ़ी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने आपको दुआ दी है या बद्दुआ दी है, ये बताइए। जो मैंने आयत पढ़ी है उसका मतलब क्या है? मैंने आपको वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, ये मैंने आपको दुआ पेश की है या बद्दुआ पेश की है, ये बताइए। दुआ करना हुजूर की सुन्नत है या नहीं? ये आप आयत कर रहे हैं, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, कयास आप चला रहे हैं ना। मैंने आपको कहा कि अगर सुनिए, अगर आप हक पर हैं, अगर आप हिदायत पा चुके तो अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने आपको ये दुआ दी है या बद्दुआ दी है? देखिए कयास ना कीजिए। अरे मैं तो कुरान का तर्जुमा कर रहा हूँ भाई, फिर कयास की बात कर रहे हैं। कुरान में जितनी हक जानते हो मुजतहिद मुतलक को, तो मुजतहिद सुनिए मुजतहिद का कयास का हक होता है ना, तो मुजतहिद पे अमल होता है ना, मुजतहिद पे अमल होता है ना, क्या मुजतहिद पे गैर मुजतहिद अमल करता है ना? नहीं, ये तो गलत बात है। अरे भाई मसाइल में मुजतहिद जो मसला बताता है तो गैर मुजतहिद उसका अमल करता कि नहीं? मुजतहिद तो नहीं होता, यानी अरे वो मुजतहिदी, अरे मुजतहिद, अरे यार अजीब आदमी है। मैं कह रहा हूँ कि जो मुजतहिद कयास करता है तो गैर मुजतहिद उस पे अमल करता कि नहीं? हेलो, आवाज नहीं आ रही मोहतरम आपकी। नहीं भाई, ये आप पहले नेटवर्क में आ जाए मोहतरम, थोड़ा नेटवर्क में आ जाए, नेटवर्क में आ जाए। मुजतहिद, हेलो जी, मुजतहिद, थोड़ा नेटवर्क में आ जाए मोहतरम आप। जी आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाए मोहतरम, थोड़ा। हेलो, आवाज आ रही है? जी आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाए। जी ये शरय खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ मैंने आपको जवाब दिया, इसको आप साबित करें। देखिए, जो मैंने सबसे पहले, मेरी बात सुनिएगा, अगर आपने शरीयत के खिलाफ साबित कर दिया तो कुरान की आयत झूठी हो जाएगी मोहतरम। मैंने आपसे पूछा था, ये जो जवाब आपने दिया है ये किसी हुजूर ने दिया या सहाबी ने दिया या ताबई ने दिया? ठीक है, मैंने कहा ये किसी ने भी नहीं दिया। सुनिए, किसी ने भी नहीं दिया, ये कुरान से साबित है। अच्छा, किसी, इसका मतलब रसूलुल्लाह वगैरह, तो रसूलुल्लाह ने जो काम किया है वो आप करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे? बिल्कुल वही करेंगे जो अच्छा, रसूलुल्लाह। चलिए ठीक है, रसूलुल्लाह ने जो काम नहीं किए अगर आप करेंगे तो क्या हुक्म लगेगा आप पर? अगर वो दीन समझ कर करेंगे तो बिदअत है, अगर दीन समझ कर नहीं करेंगे, आदत में से है, तो वो बिदअत नहीं है। तो चलिए ठीक है, 40 दिन 6 महीने 1 साल जमात साबित कर दीजिए हुजूर से। हुजूर से क्या कोई दीन समझ बस हो गया? तो दिख दीन का हिस्सा नहीं है जमात? जमात दीन का हिस्सा नहीं है, जो आपके घर घर जाकर के बोलते हैं रसूल की सुन्नत है, साहबा की सुन्नत है, झूठ बोलते हैं फिर? तो फिर झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं फिर वो सबब है, नहीं झूठ बोलते हैं फिर। तो हुजूर से साबित करिए, चिल्ला हुजूर से साबित करिए मोहतरम, अपना कयास नहीं, कयास नहीं है कि निसाब सबब बनता है मोहतरम, कयास नहीं चलेगा, कयास नहीं चलेगा, ये कयास नहीं चलेगा मोहतरम, मोहतरम कयास नहीं चलेगा, हुजूर से साबित करिए। तो आपका जो है जबरदस्ती वाला कयास ना 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 ना, तो आपका जबरदस्ती कयास मानूंगा मैं। हुजूर से साबित करिए, 40 दिन चिल्ला, मेरा भी कयास नहीं। तो बात खत्म करिए। जब मैंने आपको दुआ दी थी तो आपको बद्दुआ क्यों लगी, वो चिढ़े क्यों आप इतना? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बिदअत है। तो बिदअत तो जमात भी हो गई ना फिर, बिदअत तो सिर्फ किसी ने जमात भी नहीं निकाली है, बिदअत होगी वो भी। किसी ने जमात नहीं निकाली, किसने निकाली? कौन से ताबे चल रही है, वो भी बिदअती है। एक सेकंड, आप सुन्नी को देख के अमल करते हैं? आप सुन्नी को देख के अमल करते हैं या अपना अमल खुद करते हैं, ये बताइए। हमारे सुन्नी तो वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा भी बोल रहे हैं, हमारे सुन्नी तो 11वीं भी मनाते हैं, 6वीं भी मनाते हैं, हमारे सुन्नी तो 12वीं शरीफ भी मनाते हैं। आप भी मनाइए, क्यों नहीं मनाते हैं? हमारे सुन्नी मिलाद भी मनाते हैं, मिलादुन नबी का जुलूस भी निकालते हैं, हमारे सुन्नी 11वीं भी मनाते हैं, 12वीं भी मनाते हैं, हमारे सुन्नी 6वीं भी मनाते हैं। आप भी मनाइए ना, सिर्फ जमात क्यों पकड़ा आपने, सबको पकड़िए। ये सब के सब बिदअती है, हाँ, तो आप ही बिदअतियों के साथ क्यों पकड़ रहे हैं? आप अपना जवाब दें, अपना जवाब दें, अपना जवाब दें। 40 दिन जमात साबित करें, बिल्कुल साबित करें। कहाँ से साबित ये कियास है आपका, अबू हनीफा ने निकालने का हुक्म दिया, साबित है।
इमाम अबू हनीफा ने निकालने का हुक्म दिया। अबू हनीफा का कयास लेंगे तो किसका है? इमाम आजम अबू हनीफा का किसका कयास है ये? किसका कयास है ये इमाम आजम का कयास है। अस्तगफिरुल्लाह, इमाम आजम ने 40 दिन चिल्ला निकाला था। इमाम आजम ने कहा है हाँ, 40 दिन चिल्ला निकालो, 40 दिन चिल्ला निकालो। अरे जनाब मन सुनिए 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 है कि हर चीज सुनिए सुनिए 40 दिन के एतबार से रखा है। आप सुनिए, 40 दिन का एतबार जो अल्लाह ने किया है उसका मकसद यही है। तो रसूलुल्लाह ने थोड़ी किया है ये, बदल का और तब्दीली करने तो मतलब इस सवाब से सहाबा महरूम रह गए। होता है एक मिनट, इस सवाब से की वजह से सुनिए सुनिए, जितने भी दीन के अंदर या जात के अंदर या हुक्म आप बोलते मत जाइए, बोलते मत जाइए के अंदर 40 दिन का एतबार बोलते मत जाइए, बोलते मत जाइए। सामने वाले की बात भी सुनिए, ये रिवायत है। सामने वाले की भी बात सुनिए मोहतरम, बोलते मत जाइए। आलिम का मर्यादा रखिए थोड़ी सी। चिल्ला लगाने से इंसान अपने अमल के एतबार से भी बदल जाता है, चलिए ठीक है, एतबार से भी बदल जाता है। चलिए ठीक है। कहा ने इसको इज्तिहाद किया है। अच्छा, अब खामोश हो जाइए। इज्तिहाद किया अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो अब खामोश हो जाइए, अब खामोश हो जाइए। सुन्नती वल जमाअत का इस पर इज्मा है, अब खामोश हो जाइए। जो है अरे यार, ये बड़बड़ की दुकान शुरू हो गई। आप जो हैया ऐसे बात होती है, ऐसे बात होती है, किसी भी फतह का इज्मा नहीं है, ऐसे बात होती है। 40वीं को अरे भाई, ऐसे बात कराओगे? हो गया आपका? इतनी चीजें मैंने। हाँ, तो एक मिनट खामोश रहिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। तो ये बताइए मुझे, तो इलियास कंधालवी को कितने कोड़े की सजा देंगे? इलियास कंधालवी कहता है कि जमात मैंने शुरू की है, तकबीली जमात मैंने शुरू की है। हाँ, और लिखा दिखा दिया तो? किस जगह दिखा दिया तो? 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 फासिक आए तो चलो ठीक, इस रिकॉर्डिंग के साथ ये हवाला लगा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी रही कि इलियास कंधालवी, सुनो, इलियास कंधालवी ने कहा है कि जमात का सिलसिला अज़्व जवाज में मैंने शुरू किया क्योंकि ये बिदअत है, अच्छी बिदअत है, बिदअत है, अच्छी बिदअत है। अब खामोश हो जाओ, किसी का बाप नहीं साबित कर सकता ये जमात शुरू से आ रही है। हुजूर से साबित करो, सहाबा से साबित करो। तुमने कहा ना जो काम हुजूर ने नहीं किया वो बिदअत है, तो हुजूर ने कहाँ बोला भाई 40 दिन का चिल्ला लगाओ? हुजूर ने कहाँ बोला 40 दिन का चिल्ला लगाओ? ये 40 दिन हुजूर ने कहाँ बोला 40 दिन का चिल्ला लगाओ? अपना कयासी घोड़ा क्यों चला रहे हो जब तुम्हारा इलियास कंधालवी खुद कह रहा है कि जमात का सिलसिला मैंने शुरू किया, ये बिदअत है लेकिन अच्छी बिदअत है, बिदअत है लेकिन अच्छी बिदअत है। ये इलियास कंधालवी की किताब से मैं साबित करूंगा। लेकिन अब आप मुझे बताएं, कयासी घोड़ा क्यों चला रहे हैं? बिदअती तो साबित हो गए आप, बिदअती तो साबित हो गए, अपने उसूल से खुद बिदअती साबित हो गए आप, अपने उसूल से आप खुद बिदअती साबित हो गए। सुनिए, आप कुरान पे कहाँ जा रहे हो? अल्लाह ने हुक्म दिया, सुनो, हाँ, तो अपना कयासी घोड़ा दबाना हो तो कुरान पे चले जाओ, अपना कयासी घोड़ा चलाना हो तो इम्मा पे चले जाओ। और मैंने तुमको दुआ दी तो वो बिदअत हो गई। हाँ, किसी भी चीज में तो इलियास कंधालवी पे कोड़े की सजा पड़नी चाहिए ना। सुनिए, सुनो, इलियास कंधालवी पे इज्तिहाद जो है वो बिदअत नहीं बल्कि सुन्नत है। हो गया? इलियास कंधालवी पे कोड़ों की सजा देंगे? के अंदर लिखा हुआ है इलियास कंधालवी को कोड़े की सजा देंगे? इलियास कंधालवी को कोड़े की सजा देंगे? हाँ, तो फिर हुजूर से साबित करो 40 दिन चिल्ला। चलो हुजूर का कॉल पेश करो, हुजूर का कॉल पेश करो। बिदअती साबित हो रहे मौलाना साहब, बिदअती साबित हो गए अपने उसूल से। देखिए सामईन इकराम, इन्होंने कहा कि जो काम हुजूर ने नहीं किया हम नहीं करेंगे। मैंने इनसे 40 दिन का हवाला मांगा तो ये हवाला देने में इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहे हैं। और मैंने इनको जो दुआ दी वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, जो कुरान में मौजूद है और इसको ये नहीं मालूम है, ये आलिम है, इसको ये नहीं मालूम है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब यहूदियों को, मुनाफिकों को खतूत लिखते थे तो अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा लिखते थे, पेश करते थे खतूत में, खतों में, और ये हदीसों में मौजूद है। अभी इसको इतना नहीं मालूम है, इसको इतना इल्म नहीं है। हालांकि जब तकवीयतुल ईमान पर मुझे इससे बात करनी थी तो ये मालूम है कि इसमें फंस जाएगा, तो इसीलिए मुझे इधर से इधर घुमा रहे हैं। ये इतनी देर हो गई बड़बड़ कर रहे हैं, ना मुझे बोलने दे रहे हैं, ना सलीके से बात कर रहे हैं। ये हाल इनका देखिए। बिदअती साहब मैं सोच रहा हूं अरे बिदअती तो आप साबित हो गए, लानतुल्लाह अलैह। हुज्जत है। अच्छा, किसने बोला? रसूलुल्लाह ने फरमाया है। एक मिनट की, इलियास कंधालवी की बात हुज्जत है? बिल्कुल। तो ये बताइए फिर, अच्छा ये बताइए कि आप ताहिर गयावी ने इलियास कंधालवी को गुमराह क्यों बोला?
सुनो सुनो सुनो, तो आपके अरशद मदनी ने इलियास कांदहली को गुमराह क्यों बोला? सुनिए जनाब, जनाब 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 बड़बड़ाइए मत। अल्लाहु अकबर। इलियास कांदहली को हदीस से साबित कर रहे हैं, देखिए जाहिल मौलवी साहब। अरे भाई ऐसी बात कराओगे? ये ऐसे बड़बड़ाते चले जा रहे रेलगाड़ी की तरह, ऐसी बात कराओगे? हेलो ओ रिजवान भाई, रिजवान भाई, ओ रिजवान भाई, रिजवान भाई, अरे इन बिदती मौलवी साहब को कहाँ से पकड़ के लाए? वही तो रेलगाड़ी की तरफ भागे जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। हेलो, इलियास कांदहली को अरशद मदनी ने गुमराह क्यों बोला? लेकिन जिनको सुनो 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 सुनो, अरे बिदती मौलवी साहब बोलने दोगे? इलियास कांदहली को अरशद मदनी ने गुमराह क्यों बोला? अरे सुनिए, तो बिदती तो आप साबित हो गए। 40 दिन की जमात नहीं साबित कर पा रहे। हुजूर ने कहाँ फरमाया 40 दिन का चिल्ला निकालो? अब सुनिए, तकवीयतुल ईमान में तुम्हारा शाह इस्माइल देहलवी अल्लाह के रसूल पे झूठ बांधता है, यानी एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ। ये हदीस कहाँ है मौलवी साहब? ये हदीस कहाँ है मौलवी साहब? मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब, देखिए सामने इकराम, ये मौलवी पागल हो गया और ये मुफ्ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं कि एक बरेलवी तालिब इल्म से इनके मुफ्ती बात नहीं कर सकते। अब ये आजिज हो गया 40 दिन की जमात साबित करने के लिए, क्योंकि इलियास कांदहली कहता है कि मैंने खुद ये जमात निकाली है। अभी ये हवाला मांग रहा था, अपने मुंह से इसने खुद कबूल कर लिया। ठीक है, तो इलियास कांदहली ने जमात निकाली। अब सोने पे सुहागा सुनिए, अरशद मदनी इलियास कांदहली को गुमराह कहता है। ये इलियास कांदहली को हदीस से साबित कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, लानतुल्लाह अलैह। हाँ, तो इलियास कांदहली, सुनो, इलियास कांदहली को अरशद मदनी ने गुमराह क्यों बोला? अरे मौलवी साहब, सुनने की सलाहियत तो रखो यार। ग्रुप में बात करोगे? अरे इस ताल्लुक से ग्रुप में बात करोगे? से बात कर रहे हैं, देखिए सामने इकराम देख लीजिए आप, ये देवबंदी मुफ्ती पागल हो गया। लिहाजा इस एतबार अरे इस ताल्लुक से ग्रुप में बात करोगे? फरमान के मुताबिक और रिजवान भाई, मौलाना इलियास कांदहली और उनकी रोजा बात है। और उनकी नक्ल हरकत सुन्नत साबित हुई। चलो ठीक है, अब खामोश हो जाओ, अब खामोश हो जाओ, अब खामोश हो जाओ, अब खामोश हो जाओ। मौलाना इलियास कांदहली लानतुल्लाह अलैह, लानतुल्लाह अलैह, लानतुल्लाह अलैह। अच्छा अब खामोश हो तो जाए, खामोश तो हो जाए भाई, पागल हो गए मुफ्ती साहब। अल्लाह अकबर। अरे रिजवान भाई कहाँ से पकड़ के लाए उसको? लेकिन इनकी हालत और रिजवान भाई, बिदअती जो होते हैं, अरे बिदअती तो तुम साबित हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। एक रजा के शेर ने, तालिब इल्म ने तुमको बिदअती साबित कर दिया। इनका इलियास कांदहली को अरशद मदनी ने गुमराह क्यों लिखा? इस बदमाश ने इलियास कांदहली को अरशद मदनी ने गुमराह क्यों कहा, ये बताओ? हेलो, अस्तगफिरुल्लाह। कुरान में वस्सलामु अला मन इत्तबाल हुदा, ये दुआ है, ये दुआ है। तो बदमाश किसको बोल रहा? बदतमीजी कर रहा है। को छोड़ा और रिजवान बदतमीजी कर रहा है, देखो ये रिजवान, ये बदतमीजी पे उतर गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शिकस्त हो गई। रिजवान ऐलान करो, फरमान से रिजवान ऐलान करो, अमल को हुज्जत होना साबित कर। रिजवान भाई ऐलान करो, तुमने कहा था कि वो बदतमीजी करेंगे तो उसकी शिकस्त होगी। आप रुके मुफ्ती साहब, मैं बता दूं। रिजवान भाई, सुनो रिजवान भाई सुनो, तुमने कहा था कि कोई बदतमीजी करेगा उसकी शिकस्त होगी। ये बदतमीजी पे उतर गए, इन्होंने मुझे बदमाश बोला, ये बदतमीजी हुई, इनकी शिकस्त हो गई। मुफ्ती एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो रिजवान भाई, एक्सेप्ट करो रिजवान भाई, एक्सेप्ट करो। ये बोलने क्यों नहीं दे रहे मुझे? ये मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? तुम बताओ क्या काम है? अच्छा मैंने लानतुल्लाह कहा है? अरे अरशद मदनी ने लानत बोला है, अरशद मदनी ने लानतुल्लाह अलैह बोला। इलियास कांदहली को हवाला दूं? हवाला दूं? अरशद मदनी ने, मैंने नहीं बोला, अरशद मदनी ने। कौन सी किताब में? अरे उनका वीडियो मौजूद है, स्टेटमेंट मौजूद है। अबे वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, स्टेटमेंट मौजूद है, स्टेटमेंट मौजूद है। लानतुल्लाह अल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत हो। आमीन बोलो। बिल्कुल आमीन आमीन आमीन। इलियास कांदहली ने अरशद मदनी ने इलियास कांदहली को कहा ये गुमराह है, इसने कुरान में तहरीफ की और ऐसी जमात निकाली जो दीन में शरीयत में बिदात है। बिल्कुल ये इलियास का, और तोबा, ये मैं रिकॉर्डिंग लगाऊंगा, इसके साथ रिकॉर्डिंग लगाऊंगा, इसके साथ रिकॉर्डिंग लगाऊंगा। चलो वो बात हो गई, तेरे ऊपर अल्लाह की लानत। चलो अब वो बात हो गई। अब ये बताओ कि हुजूर ने जमात नहीं निकाली ना, तो आप बिदअती साबित हो गए।
ना हुक्म दिया, ना सहाबा ने निकाली, ना ताबई ने निकाली, ना तबे ताबई ने। खामोश। मुफ्ती साहब पहले जवाब मुझे बोलने दो। रिजवान भाई इनको चुप कराओ, रिजवान भाई इनको चुप कराओ, जवाब सुनो, रिजवान भाई इनको चुप कराओ, ये बहुत देर से बोल रहे हैं, बहुत देर से बोल रहे हैं ये, खामोश करो इनको। सवाल का रिजवान भाई मैंने इनको दुआ दी तो इनको बौखलाहट तारी हो गई, और जबकि मैंने कुरान से साबित कर दिया फिर भी ये मुझे बिदअती बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने बोला जो काम हुजूर ने नहीं किया वो काम बिदअत है। मैंने कहा कि हुजूर का एक कॉल मुझे दिखा दो कि ये जमात निकालो, 40 दिन की जमात निकालो, साहबा लाओ, हवाला दो, हवाला दो। पहले उनकी बात सुन लीजिए, फिर वो आपकी बात सुन ले, तो इसमें तो भाई ये रेलगाड़ी चला रहे हैं, ये आलिम है, बताओ आलिम है, लेकिन ये हरकतें कैसी कर रहे हैं वो नहीं देख रहे हो आप? हरकतें नहीं कर रहे हैं, ये बोलने नहीं दे रहे हैं, ये बोलने नहीं दे रहे हैं। शिकस्त हो गई इस बात से। आपने क्योंकि वादा किया था कि जो बदतमीजी करेगा उसकी शिकस्त हो हाँ जाएगी। चलो ठीक है, तुमने ऐलान कर दिया, तुम्हारे मौलवी की शिकस्त हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। चलो ठीक है, देखिए सामने ग्राम देवबंदी के बीच के हकम ने ऐलान कर दिया कि मेरे मुफ्ती की शिकस्त हो गई। चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे लगा दूंगा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सामने ग्राम देखा किस तरीके से इस देवबंदी मुफ्ती की शिकस्त का ऐलान किया। इसके ही देवबंद के जो इसका शागिर्द है उसने, क्योंकि उसने उसूल बनाया था। और दूसरी बात यह कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वस्सलामु अला मनि तबाल हुदा, अस्सलामु अला मनि तबाल हुदा खतूत में इस्तेमाल किया है जब वो यहूदी और मुनाफिकों को ख़त लिखते थे। लेकिन ये इतना बड़ा जाहिल और इतना बड़ा मलून है, इसको ये नहीं मालूम है। हालांकि मालूम सब है, लेकिन बस हुज्जत, क्योंकि इसको पता था कि तकवियतुल ईमान की इबारत जो है एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, उसका ये दिफा नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या करे, अपने शागिर्द के सामने इनको आना ही पड़ता है बात करने के लिए, और मुँह की खा के जाते हैं। अब देखिए, अरशद मदनी ने इलियास कांधेलवी की इस जमात को गुमराह कहा, इलियास कांधेलवी को गुमराह कहा। जब बांग्लादेश में तबलीगी जमात और देवबंद में झगड़ा हुआ था, ये आपको पता होगा, वो वीडियो मौजूद है। जिस किसी भाई को चाहिए मुझसे ले ले, क्योंकि वो अगर इसके साथ लगाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। उसमें इलियास कांधेलवी का खुद स्टेटमेंट है कि अगर तुम जमात में, इस तबलीगी जमात में फ़र्क कर सकते हो तो इनके साथ जाओ, नहीं तो मत जाओ। और इलियास कांधेलवी को उसने गुमराह कहा। तो ये सारी बातें हैं, हालांकि पता इनको सब होता है, लेकिन भोले ऐसे बन जाते हैं, क्योंकि फिर अवाम को ये गुमराह कैसे करेंगे कि ये जमात हुजूर की जमात है, सहाबा की जमात है, इस तरीके के जुमलेबाजी। तो बराए करम इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।